Morning, brothers and sisters. भाई और बहनों, आपको गुड मॉर्निंग। We read in our memory verse today. आज का हमारा जो मेमोरी वर्स था उसमें हमने पढ़ा, We can see the heart of Jesus there. वहां हम यीशु मसीह के हृदय को देख सकते हैं। He's saying that the prayer is that they may be one, just as we are one. और वहां यीशु मसीह की प्रार्थना ये है कि जैसे हम एक है वैसे ही वो भी एक हो जाए। So we can see the depth of that. Just like Jesus and the Father are one, in the same way he is desiring that his disciples may be one. और यहाँ हम इस बात की गहराई को देख पाते हैं कि जैसे पिता और यीशु मसीह एक है, यीशु की चाहत है कि उसके शिष्य भी एक हो जाए। So it's what a perfect example of unity it is that we have as a model or a benchmark. और हमारे लिए क्या ही सिद्ध एक उदाहरण है एकता का, जो हमारा मापदंड या हमारा उदाहरण हो सकता है। And that is the Lord's heart's desire. That is why he prayed that prayer. और यही प्रभु के हृदय की इच्छा है, इसी वजह से उसने ये प्रार्थना भी की। So we can all sincerely seek to go and move in that direction in perfect unity. और इसलिए हम सब ईमानदारी से ये कोशिश कर सकते हैं कि हम उस दिशा में बढ़ते जाए, उस एकता की दिशा में। We read in Ephesians chapter 4 verses 2 and 3. इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 2रा और 3रे वचन में हम पढ़ते हैं, with all humility and gentleness with patience. अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर, bearing with one another in love. प्रेम से एक दूसरे की सह लो। So we can see how Paul is emphasizing that need to learn to bear with one another in love. और हम देखते हैं कैसे पौलुस इस बात पर, हमारी इस जरूरत पर जोर देता है कि धीरज धरकर हमें प्रेम से एक दूसरे की सह लेना है। It is not an easy thing, we all know. ये कोई आसान बात नहीं है, ये हम सब जानते हैं। We all have a self life. हम सबके पास एक स्वयं, एक खुद का जीवन होता है। To the extent we learn to put ourselves to death, to that extent only we can bear with one another. जिस मात्रा में हम अपने स्वयं के जीवन को मार सकते हैं, उसी मात्रा में हम एक दूसरे को सह सकते हैं। Yeah, when our self is the king, we will not be able to tolerate others. जब हमारे जीवन में स्वयं राजा है तो हम एक दूसरे को सहन नहीं कर पाएंगे। But when the Holy Spirit comes upon us, when we seek the help of the Holy Spirit, that is possible. पर जब पवित्र आत्मा हम पर आता है और हम पवित्र आत्मा की सहायता को खोजते हैं, फिर ये संभव है। And it's mentioned that bear one another with love. और यहाँ लिखा है प्रेम से एक दूसरे की सह लो। We can start that in our family, immediate family. और इसकी शुरुआत हम अपने ही परिवार के साथ कर सकते हैं। We know God often unites husband and wife with different personality, different desires, different everything. Many things are different. हम जानते हैं कि परमेश्वर पति पत्नी को एक करता है, उनके व्यक्तित्व अलग होते हैं, उनके स्वभाव अलग होते हैं और उनकी जीवन में कई बातें अलग अलग होती है। And in the family we learn, whatever may be the difference, we learn to bear one another in love. और परिवार में हम सीखते हैं कि कोई भी फर्क, कोई भी अंतर क्यों ना हो, एक दूसरे को प्रेम से सहना। And we learn in that process to be one. और उस प्रक्रिया में हम सीखते हैं एक कैसे होना है। The Bible says that the husband and wife, they are no more two, but they are one flesh. और इसलिए बाइबल ये भी बताती है कि वो दो नहीं है, बल्कि वो एक तन हो गए हैं। And we read also in verse 3 there in Ephesians chapter 4. और वही हम इफिसियों 4थे अध्याय के 3रे वचन में भी पढ़ते हैं, be diligent to keep the unity of the spirit in the bond of peace. और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। So that means it is not something which will happen automatically. इसका मतलब ये ऐसी कोई बात नहीं है जो अपने आप ही हो जाती है। Just as we know, just a husband and wife marrying in the court or in the church, just that marriage will not make them one.
जैसे हम जानते हैं कि अगर एक पति पत्नी किसी चर्च में या किसी अदालत में जाकर विवाह कर ले, तो वो विवाह करने की विधि उनको एक नहीं बना देता। Knowing that God intended them to be one flesh, they had to work towards that. ये जानते हुए कि परमेश्वर की चाहत है कि उनको एक ही देह होना है, उनको उस ध्येय के प्रति काम करना होगा। Each one of them should put their self life to death. उनमें से हर एक को अपने खुद ही के जीवन को मारना होगा। And same applies in the church also. और यही बात कलीसिया में भी लागू होती है। If we are not learning to crucify our self life, we cannot be one. अगर हम अपने खुद ही के जीवन को क्रूसित करने को नहीं सीख रहे, तो हम एक नहीं हो सकते। So that is why an effort is required. Be diligent. An effort is required to keep the unity of the Spirit. और इसलिए एक यत्न की आवश्यकता है, हमें एक प्रयत्न करना पड़ेगा आत्मा में एक होने के लिए। If I am passive, indifferent, that will not happen. अगर मैं कुछ भी न करते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मेरा रवैया है, तो ये नहीं होगा। That will many families, even after years of family life, they are still two separate flesh. They are not one flesh. इसी वजह से कई परिवार भी इतने सालों साल परिवार होने के बावजूद वे आज भी दो अलग अलग देह है, वो एक देह नहीं बन गए। It is all a theory, it is all in paper, but in heart they are two separate flesh. ये सिर्फ उनके बुद्धि की एक बात है, उनके हृदय में है, पर वो उनके हृदय में अगर देखें तो आज भी वो दो अलग अलग देह है। We read again in Colossians chapter 3. हम फिर एक बार कुलोसियों की पत्री उसके तीसरे अध्याय में भी पढ़ते हैं, 12 to 14. 12 से लेकर 14 वचन। He speaks about putting on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. और वो यहाँ कहता है कि भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता का एक हृदय धारण करने के विषय में। There again it says bearing with one another. और फिर एक बार वो कहता है एक दूसरे की सह लो। So this is something which that we should never forget in our the need to learn to bear with one another. और इसलिए ये एक बात है जो हमें कभी नहीं भूलना है कि हमारी एक जरूरत है, आवश्यकता है कि हम एक दूसरे के सहन करें। God will always connect us with the people who are different than us. परमेश्वर हमें हमेशा ऐसे लोगों से जोड़ेगा जो हमसे अलग है। And God's intention is we learn putting ourselves to death, we learn to bear with one another. और परमेश्वर की मंशा, उसकी चाहत ये है कि हम अपने फर्क जो है उसको अलग रखकर एक दूसरे को सहन करना सीखें। And that is how we become more Christ-like. और इसी प्रकार से हम अधिक अधिक मसीह के जैसे बनते जाते हैं। And in the church also we can see we are so blessed to have so many variety of people from very different background, culture, language, everything. और कलीसिया में भी हम बहुत आशीषित है ये देखने के लिए कि हमारे पास लोगों में कितना अलग अलग तरह के लोग हैं, कितनी वैरायटी है, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग जातियों के लोग हैं। But when we have the love of Christ, we can rejoice in that variety and we can celebrate and we can bear with one another. पर जब हमारे अंदर मसीह का प्रेम होता है तो हम उस वैरायटी में आनंद कर सकते हैं और एक दूसरे को सह सकते हैं। And there is also need forgiving each other. और एक जरूरत यहाँ ये भी लिखी है कि एक दूसरे के अपराध क्षमा करना। None of us are perfect. हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है। God's work in us is in progress. परमेश्वर का हमारे अंदर जो काम चल रहा है वो आज भी जारी है। When we have that humble understanding about ourselves, it will be easy to tolerate others. जब हमारे पास अपने ही विषय में ये समझ होगी तो दूसरों को सहन करना बहुत आसान होगा। It will be easy to overlook the failures and faults and mistakes of others. दूसरों की असफलताएं, दूसरों की कमियां, दूसरों की सारी बातों को फिर नजरअंदाज करना बहुत आसान होगा। And it will be easy to forgive them without any difficulty. और किसी कठिनाई के बिना उनको क्षमा करना भी बहुत आसान होगा। And it says that whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, you must do also. और 13वां वचन कहता है यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण है तो एक दूसरे के अपराध वैसे क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। So it can happen occasionally, some reason for a complaint happen. और ये हो सकता है कि कभी कभार ऐसा कोई कारण है जिसकी वजह से हमें दूसरे के प्रति शिकायत है। But we have to resolve those issues.
पर हमें उन बातों को सुलझाना है। We have to learn to forgive them just like Jesus Christ has forgiven us. हमें उन लोगों को क्षमा करना सीखना है, बिल्कुल वैसे जैसे यीशु मसीह ने हमारी क्षमा की है। We should not allow those things to simmer, boil inside, and we don't express it outside. हमें कभी ये अनुमति नहीं देनी है कि ये बातें अंदर ही अंदर हमारे अंदर वो बार बार वो विचार आते रहे। One day it will all explode. एक दिन वो फटकर सब कुछ बाहर आ जाएगा। So God's way is, whenever we have a complaint against another, sort that out, forgive and resolve that matter. परमेश्वर की इच्छा यही है, जब कभी हमें एक दूसरे के विषय में कोई शिकायत है तो उसको हम तुरंत निपटा दें और एक दूसरे को क्षमा करें। And it says that in addition to all these, put on love, which is the perfect bond of unity. और फिर लिखा है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। A genuine love of the brethren, we have to it like put on like a cloth. और भाइयों के लिए एक असली प्रेम, उसको हमें एक कपड़े के समान, एक वस्त्र के समान पहनना है। And that is described as a perfect bond of unity. और इसको यहाँ सिद्धता का कटिबंध ऐसा उसका वर्णन किया गया है। So we don't have it in us. We have to receive it from the Lord. और स्वाभाविक तौर पर हमारे पास ये नहीं होता, हमें इसको प्रभु से ही स्वीकार करना होता है। When some problems happen, it is easy to brood over it, like a hen sit over the eggs. जब कभी कोई समस्याएं होती है तो ये बहुत आसान है कि हम बार बार उसी विषय में सोचते रहते हैं, जैसे एक मुर्गी उसके अंडों के ऊपर बैठती है। You know that during that hatching time, we can see the expression on the hen's face. और जब वो अंडे से बच्चे बाहर आने के पहले हम उस मुर्गी के चेहरे के हाव भाव देख पाते हैं। It is always in a fighting spirit. वो हमेशा एक लड़ने की आत्मा में होता है। It always suspect others. वो हमेशा दूसरों पर शक करता है। And it is not willing to. It is in attack mode. और वो बिल्कुल हमला करने के लिए तैयार ऐसा बैठा होता है। It is brooding over its eggs. और वो अपने अंडों के ऊपर वो बैठी है। But that is a purpose, God-given purpose, which God has given to that bird. पर उस पक्षी को दिया हुआ एक परमेश्वर का दिया हुआ ये उद्देश्य है। But as believers, as God's children, we should not brood over something happened in the past. पर विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, बीते हुए जीवन में जो कुछ हुआ है उसके विषय में हमें निरंतर सोचते नहीं रहना है। We had to solve, we had to forget, we had to forgive and move ahead. हमें उसको हल करना है, उसको भूलना है, क्षमा करके हमें आगे बढ़ना है। We had to throw out those thoughts of suspicion about others. दूसरों पर शक करने के जो विचार हैं, उन विचारों को हमें बाहर फेंकना है। That memories of some wrong which others have done to us. जो दूसरे लोगों ने हमारे खिलाफ कुछ गलत किया है, उसकी जो यादें हैं उनको बाहर फेंकना है। How long we'll brood over those thoughts? Some 5 years before somebody did some wrong to us, we are not willing to forget it. कब तक हम उन्हीं विचारों को लेकर बैठेंगे, उनको सोचते रहेंगे? 5 साल पहले किसी ने हमें कुछ किया, हम उसको अभी भी भूल नहीं सकते, उनको माफ नहीं कर सकते। Or somebody gave some correction or a feedback and we are upset, we are brooding over it. Our face will show that we are brooding over, we are not willing to forget it. या किसी ने हमें सुधार किया या कोई एक सुझाव दिया था, पर हम उसको भूल नहीं पाते और हमारा चेहरा ये दिखाता है कि हम बार बार उसके विषय में सोच रहे हैं और हम उसको भूल नहीं पा रहे। If you brood over those things, you will never make progress. अगर आप उन्हीं विषयों में सोचते रहो तो आप कभी भी उन्नति या विकास नहीं करोगे। We can see in John chapter 12:24. हम निकालेंगे यूहन्ना 12 उसका 24 वचन। Jesus told, unless a grain of wheat falls to the earth and dies, it remains alone. यीशु मसीह ने कहा कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। But if it dies, it bears much fruit. परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। So we have these two options, either willing to fall to the ground and die. और हमारे पास ये दो चुनाव है, हम या तो भूमि में पड़कर मर सकते हैं, die to our self life,
अपने खुद के जीवन, स्वयं के जीवन के प्रति मरना। And every opportunity which God gives, an opportunity to put ourselves to death, put that self to death. और हर एक मौका जो परमेश्वर हमें देता है जहां हम अपने खुद ही के जीवन को मार सकते हैं, वहां हमें अपने खुद ही के जीवन को मारना है। If you do that, we will bear much fruit. अगर आप ऐसा करोगे तो, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बहुत फल लाएंगे। We will be a blessing to others. हम दूसरों के लिए आशीष बनेंगे। If we are not willing to die to ourselves, अगर हम अपने स्वयं के प्रति मरने के लिए तैयार नहीं हुए तो, if you are not willing to fall to the ground and die, अगर आप भूमि में पड़कर मरने के लिए तैयार नहीं हुए तो it will be difficult to fellowship with such people. फिर ऐसे लोगों के साथ संगति करना बहुत कठिन होगा। As it mentioned, it remains alone. जैसे लिखा है, वो अकेला होता है। We can live as a lonely saints. We call ourselves saints. और हम बिल्कुल अकेले संत बनकर जी सकते हैं, हम अपने आप को संत कहते हैं। But it will be difficult for others to fellowship. पर दूसरों के लिए बहुत कठिन होगा हमारे साथ संगति करना। It will be difficult to manage such people. ऐसे लोगों के साथ बर्ताव करना भी बहुत कठिन होता है। And it will be difficult to accommodate such people. और ऐसे लोगों को सहन करना, उनके साथ रहना बहुत कठिन होता है। I don't think any one of us desire to be in such a position. It is hard to deal with us. मैं नहीं सोचता हम में से कोई भी ऐसे जगह होना चाहेगा जहां लोग हमारे विषय में कहेंगे कि इसके साथ बर्ताव करना बहुत कठिन है। But if you are willing to fall to the ground and die, you will bear much fruit. पर अगर हम भूमि में पड़कर मरने के लिए तैयार हैं तो हम अधिक फल लाएंगे। I remember some years back when Sag brother was telling, as I remember, he heard this. God gave him a revelation. और मुझे याद है कुछ सालों पहले भाई जैक ये बता रहे थे कि परमेश्वर ने उनको ये प्रकटीकरण दिया था। I go to my place and fall to the ground and die if you want to build a church. अगर मुझे कोई कलीसिया का निर्माण करना है तो मैं अपने जगह जाकर भूमि में पड़कर मुझे मरना होगा। So if you are not willing to die, we cannot build others. We cannot build a church. और अगर हम अपने आप के प्रति मरने के लिए तैयार ना हो तो हम दूसरों को नहीं बांध सकते, हम कलीसिया का निर्माण नहीं कर सकते। 1 Peter chapter 4 verse 7. पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन। The end of all things is near. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। I was thinking and reading and meditating this portion last week. और पिछले हफ्ते मैं इस विषय में सोच रहा था, पढ़ रहा था, मनन कर रहा था। We are in a sense when we see and observe the things happening in this world. हम अगर अपने आसपास इस संसार में जो घटनाएं घट रही हैं उनको अगर देखें तो we can see if you are familiar with the scriptures, the many things in the recorded in the Bible and are being fulfilled. हम देख पाते हैं, अगर हम बाइबल को जानते हैं तो कि बाइबल में लिखी हुई कई बातें आज सच हो रही है। We are closer to the second coming of the Lord. प्रभु के दूसरे आगमन के बहुत निकट हम आ चुके हैं। It says that the end of all things is near. और इंग्लिश में ये वचन कहता है सब बातों का अंत बहुत पास है। So things are very fast moving ahead. इसका मतलब जो बातें हैं वो बहुत जल्द आगे बढ़ रही है। And we are approaching fast the end of all things. और हम बहुत ही जल्दी सारी बातों के अंत तक जा रहे हैं। So what we should do, it is written there. और फिर हमें क्या करना चाहिए ये भी यहाँ लिखा है। Therefore be of sound judgment. इसलिए संयमी होकर, So give value to important things. और जो सही बातें हैं, जरूरी बातें हैं, उनको मूल्य देना। Leave behind the past things. जो बीते काल के बातें हैं उनको पीछे छोड़ देना। Look ahead to the future. आगे भविष्य की ओर देखो। Remember our calling. हमारी बुलाहट को याद रखो। Think about God's purposes for our life. परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए क्या उद्देश्य है उसको याद रखो। So be sober spirit. और इसलिए बिल्कुल संयमी रहना है। Live in reality. सच्चाई या वास्तविकता में जियो। And be aware of our own need. और अपनी ही जरूरत के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। It mentioned about for the purpose of prayer. और यहाँ लिखा है संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो।
Prayer means we are talking to God प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बात करना, and we are in touch with God. और हम परमेश्वर के संपर्क में हैं. Prayer also means that a sign that we are not trusting in ourselves, we are trusting in God. और प्रार्थना का ये भी मतलब है, वो इस बात का भी चिन्ह है कि हम अपने आप पर भरोसा नहीं रखते, बल्कि हम परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं. People who have strength in their own, they need not to pray. जिन लोगों में अपने पास ही सामर्थ्य है, उनको प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं. It is the needy people who will pray. वो जरूरतमंद लोग हैं जो प्रार्थना करेंगे. It is people who are in touch with God who will pray. ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के साथ संपर्क में है, जो प्रार्थना करेंगे. And prayer is like breathing. और प्रार्थना करना ये बिल्कुल श्वास लेने जैसा है. So that prayer need not be like we may not be kneeling or we may not be separating. It should naturally happen. The spirit of trust in the living God, our Heavenly Father. और इसलिए जैसे हम सांस आसानी से लेते हैं, वैसे ही ये एक आत्मा होती है परमेश्वर पर भरोसा रखने की. And also, just like we do some special breathing exercise, we also will have some time of specific intense prayer also. और कभी कभार जैसे हम विशेष सांस लेने की कोई एक्सरसाइजेस करते हैं, वैसे ही हमारे पास कुछ विशेष समय हो सकता है ज्यादा तीव्र प्रार्थना करने की भी. So it's good to ask ourselves, are we in touch with God? Are we in touch with Jesus? और इसलिए ये अपने आप से प्रश्न करना बहुत अच्छा है, क्या हम परमेश्वर के संपर्क में हैं, क्या हम यीशु मसीह के संपर्क में हैं. Are we talking to him? क्या हम उससे बात कर रहे हैं. Are we in a personal relationship with him? क्या हम उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध, एक रिश्ते में हैं. And we see here, above all, keep fervent in your love for one another. और यहाँ हम आगे पढ़ते हैं, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो. We know that we receive love, and that is why we are able to receive love others. और हम जानते हैं कि हमने प्रेम को पाया है, इस वजह से हम दूसरों पर प्रेम कर पाते हैं. If we have not received love from the Lord, we cannot love others. अगर हमने प्रभु से प्रेम को नहीं प्राप्त किया है, तो हम दूसरों से प्रेम नहीं कर पाएंगे. So if you have received fervent love from the Lord, we can fervently in turn love Jesus, and even you can fervently love others also. और इसलिए अगर हमने परमेश्वर से एक तीव्र प्रेम को प्राप्त किया है, तो हम उसके बदले में यीशु से भी प्रेम कर पाएंगे और दूसरों से भी प्रेम कर पाएंगे. You should desire for that fervent love for one another. हमें ये लालसा रखनी है कि हमें एक दूसरे के प्रति एक बहुत तीव्र प्रेम हो. Not a passive, cold love. कोई ठंडा निष्क्रिय प्रेम नहीं. We are not fighting. That doesn't mean that we are loving one another. सिर्फ हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते, इसका ये मतलब नहीं कि हम एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं. And love covers a multitude of sins. क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है. When we love others, it is easy to forgive them. जब हम लोगों से प्रेम करते हैं तो उन्हें क्षमा करना बड़ा आसान हो जाता है. And when you really love, it is easy to overlook others' failures. और जब हम सचमुच प्रेम करते हैं तो दूसरों की असफलताओं को नजरअंदाज करना बहुत आसान होता है. And when we have this life and our dear ones are around, this is a time to love one another. और जब तक हमारे पास जीवन है और हमारे नजदीकी लोग हमारे आसपास है, यही समय है एक दूसरे से प्रेम करने का. In our family, in our church, we should seek to love one another fervently. हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में हमें लोगों से बिल्कुल उत्सुक प्रेम करने की एक इच्छा होनी चाहिए. I read a story of a young boy who always rebelled against his mother, and he did not receive his mother's love, and he did not love her in return. और मैंने एक जवान लड़के की कहानी सुनी जो हमेशा अपने माता के खिलाफ बलवा करता था. उसने कभी अपने माता के प्रेम को स्वीकार नहीं किया और उसने कभी बदले में उससे प्रेम नहीं किया. And one day that mother became sick and she died. और एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ जाती है और वो मर जाती है. And when she died at the funeral place, that boy could not bear that thought that when mother was with me, I could never love her. और उसकी मृत्यु होने के बाद उस फ्यूनरल के समय वो बेटा इस सोच को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि अब क्योंकि मेरे माता की मृत्यु हो गई है, मैं उससे प्रेम नहीं कर पाऊंगा. So all those years that mother was with him, I wasted away. I just neglected her love, and that thought he could not bear.
और ये सारे वर्ष जब मेरी माता मेरे साथ थी तब मैंने उससे प्रेम नहीं किया और अब मैं उससे प्रेम नहीं कर पाऊंगा, ये विचार वो सहन नहीं कर पा रहा था। Yeah, so that should not happen to us. और ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। Once a person around is no more with us, what is the point in regretting about the past? एक बार कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं होता तो फिर बीते हुए जीवन के विषय में खेद करके पछतावा करके क्या फायदा। When our dear ones are around us, that is the time to love them. जब हमारे प्रियजन हमारे आसपास है वही समय है उनसे प्रेम करने का। That is something we should remind ourselves in the family. और ये एक बात है जो हमें अपने परिवार में अपने आप को याद दिलानी है। Somebody passed away, then regretting, oh, I did not love that brother, sister, husband, wife. Then regretting is of no value. किसी की मृत्यु हो जाने पर फिर ये याद कर कर खेद करना कि मैंने अपने भाई बहन पति पत्नी से प्रेम नहीं किया, फिर उसका कोई मूल्य नहीं रहता। So brothers and sisters whom God has given, if you don't love them now and regret later, that is of no use. और इसलिए जो भाई बहन परमेश्वर ने हमें दिए हैं, अगर हम उनसे अभी प्रेम नहीं करते और बाद में खेद पछतावा करते तो उसका कोई फायदा नहीं। So this thought was coming to me in relation to the end of everything, that there is a need to set right our matters. और इसलिए ये विचार मेरे मन में आ रहा था कि सब बातों का अंत क्योंकि होने वाला है, इसलिए जरूरत है कि हम बातों को ठीक करें। Especially our relationship with others, whatever we can set right, we have to, it should be a priority to sort out those things. विशेषकर जो दूसरों के साथ हमारा संबंध है, जो कोई बातें ठीक की जा सकती है, हमारी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम उन बातों को ठीक करें। Because when we lost the opportunity, those people are no more with us, at that time regretting, it will be unbearable. क्योंकि जब हम उस मौके को खो बैठते हैं, जब वो लोग हमारे साथ नहीं होते, फिर उनके साथ मेल मिलाप नहीं कर पाना, ये विचार बहुत सहने के बाहर होगा। We read in Matthew chapter 5:23. हम मत्ती 5 उसके 23 वचन में भी पढ़ते हैं, If you are presenting your offering at the altar and there remember that your brother has something against you. यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। See, we can compare that to we are sitting for prayer or we are attending church meeting, something like that. हम इसकी तुलना कर सकते हैं कि हम प्रार्थना के लिए बैठे हैं या कलीसिया में कोई सभा के लिए हम बैठे हैं या ऐसे कोई बात के लिए। So we have come to offer something to the Lord at the altar. हम उस वेदी पर प्रभु के सामने कुछ भेंट करने के लिए आए हैं। When we are about to do that, we are remembering something. और जैसे ही हम वो करने वाले हैं, हमें कोई बात याद आती है। God is reminding us something. प्रभु हमें कोई बात की याद दिलाता है। What the Lord is reminding? प्रभु हमें क्या याद दिला रहा है? Your brother has something against you. कि तेरे भाई के मन में तेरे खिलाफ कुछ है। It is not that you have something against your brother. ये नहीं कि तुम्हारे मन में तुम्हारे भाई के विरोध में कुछ है। One of the brothers has something against you. Holy Spirit is reminding that to you. पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है कि कोई एक भाई है जिसके मन में आपके विरोध में कुछ है। So what we should do at the time? तो फिर ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? We cannot brush aside those thoughts. हम उन विचारों को ऐसे ही झटक नहीं सकते। It is the Holy Spirit who reminding us that brother has something against you. क्योंकि वो पवित्र आत्मा है जो हमें याद दिला रहा है कि उस भाई का तेरे खिलाफ कुछ विचार है। You have nothing against him, but he has something against you. तुम्हारे मन में उसके खिलाफ कुछ नहीं है, पर उसके मन में तुम्हारे खिलाफ कुछ है। God is reminding you that brother has some problem with you. परमेश्वर आपको याद दिला रहा है कि उस भाई के मन में आपके खिलाफ कुछ है। Then Jesus say, leave your offering there before. यीशु मसीह वहां कहता है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। Don't pray now. अभी प्रार्थना मत करो। First you go and try to be reconciled with your brother. पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर लो। He has some problem with you. Go and find out what is the reason of that problem and try to solve that problem. उसके मन में आपके खिलाफ कोई विरोध है तो उससे जाकर पहले ये जानकारी हासिल करो कि क्यों वो है, उसको समेट करो, फिर आओ। So naturally, if you have caused him some offense, if you are aware about it, accept it and ask him forgiveness. और स्वाभाविक तौर पर अगर आपने उसके मन को दुखाया है, अगर आपके कोई ये है तो उसके क्षमा मांगो। And then reconcile and then come back and present your offering. और इस प्रकार मेल मिलाप करके फिर वापस आकर अपनी भेंट को चढ़ाओ।
So we can understand how if we have somebody has a problem and we are aware about it, we are not making attempt to resolve that. और हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम जानते हैं कि किसी और के मन में हमारे खिलाफ कुछ है और हम उसको सही करने की कोशिश नहीं कर रहे, then if you try to offer a praise, it's a waste. और फिर हम इस प्रकार से अपनी प्रार्थना को चढ़ाने की कोशिश करें तो वो बिल्कुल व्यर्थ है. God is not going to answer such prayers. हमारी ऐसे प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर नहीं देगा. So we can understand the value God gives to reconcile with others. और हम इससे देख पाते हैं कि एक दूसरे से मेल मिलाप करने को परमेश्वर कितना मूल्य देता है. Here the Lord is not saying let that brother come and ask you forgiveness that you solve. He is saying you go there, meet him and find out what is the problem. और यहाँ परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि उस भाई को तुम्हारे पास आकर बताने दो. नहीं, परमेश्वर कहता है तुम जाओ, उससे जान लो कि क्या तकलीफ है और उसको समेट लो. So when I read this thought was coming, in another place, Jesus was saying, when somebody is asking you to walk 1 mile, you walk 2 miles. और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक और बात है जो यीशु मसीह ने कही कि अगर कोई तुमसे कहे 1 मील चलने को तो उसके साथ तुम 2 मील चल दो. Meaning, if some problem is there with somebody, you can, if you are a godly person, you can make an extra effort to solve that problem. इसका मतलब अगर किसी और के मन में तुम्हारे खिलाफ कोई समस्या है और अगर आप एक ईश्वरीय व्यक्ति हो तो आप ज्यादा प्रयत्न कर सकते हो उस समस्या को सुलझाने के लिए. We read in Hebrews 12:14 also. हम इब्रानियों 12 उसके 14 में भी पढ़ते हैं. Pursue peace with all men and sanctification, without which no one will see the Lord. सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा. So recently it a little enlightened my heart. Sorry uncle. Recently this verse a little enlightened my heart. और हाल ही में इस वचन से मुझे एक नई ज्योति मिली. How the pursuing peace with all men is so important before God. कैसे सब लोगों से मेल मिलाप के पीछे खोजना ये परमेश्वर के नजदीक नजर में इतना जरूरी है. It's written without which no one will see the Lord. क्योंकि यहाँ लिखा है जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा. If I neglect or ignore my pursuing peace with the people and I hope that I will see the Lord, that will not work. मतलब अगर मैं लोगों से मेल मिलाप करने की कोई कोशिश न करूं और मैं ये सोचूं कि मैं प्रभु को देखूंगा तो ये नहीं काम करेगा. In 2 Timothy chapter 3, दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय, in that initial verses, उसके शुरुआती वचनों में there are some 1 to 3 verses, some 18 things are written. और पहले 3 वचनों में कुछ लगभग 18 बातें लिखी गई हैं. And the first verse starts to realize this, that in the last days difficult times will come. और पहले वचन की शुरुआत इस प्रकार होती है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे. And then that 18 things are listed. और उसके बाद वो 18 बातें की सूची दी गई है. So one of the things written is people will be irreconcilable. और एक बात जो लिखी गई है वो है लोग कठोर होंगे. People will resist getting reconciled with others. लोग बिना मेल मिलाप के होंगे. इसका मतलब एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करने की वो कोशिश भी नहीं करेंगे. Correct. Or in other words, somebody come to reconcile, then they will not cooperate. या दूसरे शब्दों में जब कोई उनके साथ मेल मिलाप करने आता है तो वो उनका सहयोग नहीं देंगे. So I was imagining situation like one brother. Remember, I had some problem with. He understood. He come and ask forgiveness to me. और मैं सोच रहा था ऐसे एक परिस्थिति के विषय में जहां एक भाई का मेरे खिलाफ कुछ होता है, वो मेरे पास आकर क्षमा मांगता है और मैं उसको क्षमा करता हूँ. No, he is asking forgiveness, but I am not forgiving and not willing to reconcile with him. सॉरी, वो मेरे पास आकर क्षमा मांगता है पर मैं उसको क्षमा करने के लिए, उसके साथ मेल मिलाप करने के लिए तैयार नहीं हूँ. So that is a meaning of irreconcilable. इसका मतलब है बिना मेल मिलाप का होना. Even though that brother wanted to reconcile with me, I am not willing.
यद्यपि वो भाई मेरे साथ मेल मिलाप करना चाहता है, फिर भी मैं नहीं चाहत रखता। Even though he wanted to ask forgiveness, and I am not willing to forgive him. यद्यपि वो चाहता है मुझसे क्षमा मांगना, फिर भी मैं उसको क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। To be that spirit of something opposite of reconciliation working in us. क्या हमारे अंदर मेल मिलाप के विरोध में कोई आत्मा काम कर रही है? Somebody make an effort also, we are not willing to reconcile, we are not willing to sort out the problems. मतलब कोई व्यक्ति कोशिश करने के बावजूद भी हम मेल मिलाप नहीं चाहते, हम उन समस्याओं को सुलझाना ही नहीं चाहते। See that those things are a spirit that will work in the end times. और यहाँ लिखा है कि अंतिम दिनों में ऐसी एक आत्मा लोगों के बीच काम करेगी। So we have to root out from our life that spirit of irreconciliation. और ये मेल मिलाप रहित होने की जो आत्मा है, इस आत्मा को जड़ से हमें अपने जीवन से निकालना है। We see a passage in Matthew chapter 24. मत्ती उसके 24 अध्याय में हम एक वचन को देखते हैं। Jesus told it again in the context of last days. यीशु मसीह ने फिर एक बार अंतिम दिनों के पृष्ठभूमि में संदर्भ में इस बात को कहा। He's talking about a servant who was entrusted responsibility of looking after other servants, slaves. ऐसे दास के विषय में बताता है जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो दूसरे दासों पर ध्यान रखे। Yeah. So we read that in Matthew 24 verse 48. और हम उसको पढ़ते हैं मत्ती 24 उसके 48 वचन में। If that evil slave says in his heart, my master is not coming for a long time. परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, and he begins to beat his fellow slaves and eat and drink with the drunkards. और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए। So the servant, his master is delayed. ये जो दास है उसके स्वामी को आने में देर हो जाती है। So he is very complacent. He begins to pick a fight with others, beat his fellow slaves. और वो बहुत ही हल्के में बातों को लेने लगता है, वो अपने बाकी संगी जो दास है उनको पीटने लगता है। In other words, quarrel with others. दूसरे शब्दों में वो झगड़ा करने लगता है दूसरों के साथ, with other slaves. दूसरे दासों के साथ। So think about that. इसके विषय में सोच कर देखिए। When the Lord comes, we are engaged in the battle, quarreling with each other. जब प्रभु वापस आता है, हम एक दूसरे के साथ लड़ाई करने में या झगड़ा करने में व्यस्त है। That's not a good thing which the Lord, we would not like to face. When the Lord comes, we are engaged in quarreling with others. ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस परिस्थिति का हम सामना नहीं करना चाहेंगे कि जब प्रभु वापस आता है हम दूसरों के साथ लड़ रहे हैं। We are in quarrel with our brothers and sisters. हम अपने भाइयों बहनों के साथ झगड़े में हैं। We are in quarrel with our husband and our wife. हम अपने पति पत्नी के साथ कोई झगड़ा कर रहे हैं। And it mentioned that the master will punish such as slaves. और यहाँ आगे जाके ये भी लिखा है कि वो स्वामी उस दुष्ट दास को दंड देगा। So we have to sober minded and we have to free ourselves from the spirit of quarreling. और इसलिए हमें सचेत होकर झगड़ा करने की जो आत्मा है उससे अपने आप को छुड़ाना है। All that boiling, simmering thoughts of quarreling, picking a fight and unforgiving. हमारे अंदर जो वो उबलते हुए विचार होते हैं झगड़ा करने के, क्षमा न करने के, उन विचारों से हमें बचना है। Somebody asks forgiveness, still we will not forgive. कोई आकर हमसे क्षमा मांगता है, उसके बावजूद हम क्षमा नहीं करते। We ourselves will not go and ask forgiveness. हम खुद जाकर किसी से क्षमा नहीं मांगते। We just brood over all the past things. जो बीते काल में हुई बातें हैं उन्हीं के विषय में हम बार बार सोचते हैं। We are not helping to solve any problems. हम कोई समस्या का हल करने में कोई सहायता नहीं करते। All the quarrels are alive. सारे झगड़े आज भी जीवित है। There is no peace. कोई शांति नहीं है। That is a very bad thing can happen. ये बहुत एक बुरी बात है जो हो सकती है। I hope we all can work in that area and we will not remain in that state of quarreling with others. मैं आशा करता हूं कि हम सब इन क्षेत्र में काम कर सकते हैं और हम इस परिस्थिति में ना रहे जहां हमारा लोगों के साथ कोई झगड़ा है। We may not literally beat anybody. हम शायद वास्तविक तौर पर जाकर किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। I hope none of us will beat our wife. मैं आशा करता हूं हम में से कोई अपने पत्नी पर हाथ नहीं उठाता। And we will not pick up a little quarrel, physical battle with our brothers or sisters.
और हम अपने भाइयों बहनों के साथ झगड़े में कोई शारीरिक तौर पर मारपीट नहीं करते। So sometimes it may be in words, or it may be even very silent inside this quarrel, spirit of quarrel. कभी कभार ये शब्दों में हो सकता है, पर कभी कभार बहुत ही चुपचाप होकर हमारे विचारों में ही ये झगड़े की आत्मा हो सकती है। It's a very dangerous thing which we should be freed. और ये बहुत एक खतरे भरी बात है जिससे हमें स्वतंत्र होना है। Let us seek to close the matters, forgive, forget, be reconciled. हम इसके खोजी बने कि हम बातों को सुलझाते हैं, क्षमा करते हैं और मेल मिलाप करते हैं। Before closing, I wish to read something from John chapter 13. अंत करने के पहले यूहन्ना उसके 13वें अध्याय से मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। It's written, Jesus, knowing that his hour had come, that he would depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. और यूहन्ना 13 उसका पहला वचन, जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। Yes, it's very clearly written, whomever God gave him in the world, he loved them, and specifically he loved them to the end. और यहाँ बहुत स्पष्टता से लिखा है कि जितने लोगों को परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया था, यीशु मसीह ने उन लोगों से प्रेम रखा, और विशेषकर लिखा है अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। So that's a strong encouragement for all of us. और ये बहुत एक मजबूत प्रोत्साहन है हम में से सबके लिए। Whomever God has given for us in this world, जिस किसी लोगों को परमेश्वर ने हमें संसार में दिया है, our husband, wife, children, brothers and sisters, हमारा पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, yeah, our desire should be to love them till the end. हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम अंत तक उनसे प्रेम रखें। Not only when they behave good. सिर्फ तब नहीं जब वो अच्छा बर्ताव करते हैं। We see something not I like, then I stop loving them. That shouldn't be that way. जब हम उनमें देखते हैं कि मुझे पसंद नहीं, ऐसा वो बर्ताव कर रहे हैं, फिर मैं उनसे प्रेम करना रोक देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। Jesus loved them to the end. यीशु मसीह ने उनसे अंत तक प्रेम रखा। And remember, this included Judas. और याद रखे कि इसमें यहूदा इस्करियोती भी शामिल था। Meaning Jesus loved even Judas till the end. इसका मतलब यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती से भी अंत तक प्रेम रखा। I am sure Jesus definitely didn't have fellowship with Judas. मैं बिल्कुल इस बात के विषय में निश्चित हूँ कि यीशु मसीह ने उसके यहूदा के साथ कोई संगति नहीं रखी। But Jesus loved Judas till the end. पर यीशु मसीह ने उसके बावजूद अंत तक यहूदा से प्रेम रखा। Someday we may not be able to fellowship with everyone. कभी-कभी हम सब लोगों से शायद संगति नहीं कर पाते। Fellowship is possible with like-minded people. संगति उन्हीं लोगों के साथ संभव है जो हमारे तरह ही सोच रखते हैं। But we should love them, love everyone till the end. पर हमें सबसे प्रेम करना है अंत तक। May God bless us. परमेश्वर हमें आशीष दे।